Good morning, everyone. Wait a minute. We'll take 1 minute and so then we'll resume our class. And I have left the class. From there, I'm going to start the topic. And hopefully, I will try my best to complete Mary Parker Follett because the theory of Mary Parker Follett is really much more important in public administration. That is why it is being taught little delay. If you want to little detail, if you want to get more detail, then you please join the course subscription. You get the subscription of my code and then you'll get the class. Now you see, let us start. Crack all UPSC optionals with India's largest learning platform and get the subscription of it. India's largest learning platform and get the subscription of it. So once you get the subscription, once you get the subscriptions, you see what you will be getting. You'll be getting daily live classes. You'll be chatting with the educator, engaged with discussion, asking doubts, and many more things. Structure courses, you see there are more than 15,000 structure courses in UPSC civil service and all are arranged in very systematic manner. Live test and quiz are there only and only to evaluate the performance of learners so that before going to give the exams they can evaluate themselves. Unlimited accessibility literally means that if you fail to get recorded daily live classes, recorded lecture is available and you can get it at any time. And this is what is happening during the time of festivals. During the time of festival, this is what going to happen, and it is happening presently also. Now you see, you can download this app through Google Play or App Stores. About me, I have completed the graduation from Calcutta University in science subject and has done MA in public administration with IGNOU universities. I am acting as a mentor for UPSC civil service for last 11 years and so in public administration, polity and governance in many states. I have appeared for UPSC civil service interview twice and have served in many reputed IAS coaching institutions at Delhi, Jammu and Kashmir and many more states. Under my guidance, you see many aspirants have cracked UPSC civil service exam as well as many state level exams too. You see, along with me, there are top 100 educators who will be educating you to make your dream fulfilled. And in this slide, you can see that the name of few educators. In this slide, you can see the name of few educators. 15,000 plus courses, as I said earlier, is available in UPSC civil service exams like polity, governance, international relations, geography, science and technology, NCRT summaries, history, optional courses, environment and ecology, art and culture, current affairs, Indian economic, and you can see this. As you all know that these courses cannot be completed in 1 month, 3 months, or 6 months. So it's better that you go for 12 months. But even though if you want to get the subscription of 1 month, 3 months, and 4 month or all, you see this is the base fare. And Unacademy is providing two types of courses. One is of plus courses and the other one is of iconic courses. One is of plus courses and the other one is iconic courses. So in these plus courses, you see live classes will be there, test series will be there, unlimited practice and structure schedule will be there. So in this case, if you apply, as I said that for 1 month, 3 months and 6 months, you cannot complete your course. You cannot complete your course. So for 12 months, it's better that you apply for 12 months. So once you apply for 12 months, you see 49,500, your basic fees is there. But if you apply my promo code, that is MDYT, if you apply my promo code, that is MDYT, then you will get 10% discount. And with that, you have to pay 44,550. Similarly, for 24 months, if you see, you have to pay 72,000. This is the base fare. And in this 72,000, you have to pay, if you apply my promo code, that is MDYT, then you have to pay only 10%. You have to pay only 10%, and with this 10%, you see, you have to pay 64,800. Similarly, for 36 months, the fees is 90,000, and if you apply my promo code MDYT,
So you have to 10% deduction will be given. So you have to pay 81,000. Then you see iconic courses, and this iconic courses is really benefiting for everyone, those who apply for it, because in this iconic course you see personal coaching has been given. Then you see daily means question sheets will be provided. Then you see study planner is provided. Okay, and then personal feedback that how and what you are thinking about it, that also will be provided to you. So you see for 12 months the iconic courses, because in the iconic courses 1 month, 3 month, and 6 month concept is not there. That is there only in plus courses. So in this iconic courses, if you apply for 12 months, you have to pay 69,500. But if you apply my promo code, you will get 10% discount. My promo code is MDYT. You will get 10% discount. And then you have to pay 62,550. Then if you apply for 24 months, the fees is 1,07,000. But if you apply my promo code, then you'll be getting 96,300 only by applying my promo code MDYT. Then again you see 36 month. For 36 month it is 1,41,000. But again you apply my promo code MDYT. Don't forget to apply and get 10% discount. So once you get it 10%, you see 1,26,900 you have to pay the fees. 1,26,900 you have to pay fees. So this is what about Unacademy. Okay, so once you get the Unacademies, you please, if you wish, you can give my promo code MDYT. Now see, we have talked about UPSC civil service course. Okay, now as I have discussed about Mary Parker Follett, and we all know that we were just about to complete Mary Parker Follett, but because of some technical issue, I have to give this lecture of half an hour. But now I will be giving this lecture for full, that is for 1 hours. So as you all see that in Mary Parker Follett, I have talked about constructive conflict and we have discussed, and this constructive conflict, she has talked about domination, compromise, and integrations. Similarly, you see, she has also talked about depersonalizing order, that is law of situations. You can see that it is written here, law of situations. With this law of situations, you see everything is given. Then you see, again, she has talked about by using law of situations, new four method has been adopted in the organization. That is desirability of new method among the workers. Then you see among members in organization, adoptions of new methods, then propagations of advantage and intensification of the attitude. Attitude is very important with respect to मेरी पार्कर फॉलेट. एटीट्यूड मेरी पार्कर फॉलेट के लिए बहुत रेस्पेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. देन यू सी वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कंट्रोल, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल, दैट इज फैक्ट कंट्रोल एंड मैन कंट्रोल. शी सेज दैट फैक्ट कंट्रोल इज मच बेटर देन मैन कंट्रोल, because man control is dominating and fact control is always self regulating, self control. So this also we have done. We have also done with the coordinations. Okay, so when we talk about coordination, Mary Parker Follett says that coordination, there are four ways of coordination. Number one, that is reciprocal. Number two is horizontal and vertical. Number three is you see at early stage, and number four is at, that is continuous process. Then you see issuing of order. Now you see issuing of order. This is what we were discussing about issuing of order. So when we are discussing about the issuing of order, so in this regard, Mary Parker Follett says full stage of issuing the order, and that we have just started it, the issuing of order. And after the starting, because of the time, I have to close it. And you see, I stopped here. So now I'll be continuing with the issuing of order. So issuing of order, she talks about four stages, and this order is in terms of attitude. And as you know that I have, as I said you, that when I was aspirant like you, so I used to attend many seminars of IAS. So there I have shared my experience कि कुछ IAS ने किस तरह से अपने attitude को किस पोजीशन से लिया और कैसे उसे समझा, that is more important. But ये सब में नहीं होता है, because once you be in the organizations, you see superior has more attitude than that of subordinate. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. The number one, she talks about conscious attitude. It refers to the knowledge of
डिफरेंट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द ऑर्डर कंसर्न। अब आप देखिए कि उन्होंने कितना सॉलिडली और कितनी अच्छे से मेरी पार्कर फॉलेट हैज टॉक्ड अबाउट दिस। मेरी पार्कर फॉलेट ने कितने अच्छे से उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। दैट मीन्स मेरी पार्कर फॉलेट ने कहा है कि कॉन्शियस एटीट्यूड का मतलब होता है कि जो व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है, दैट इज इट रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ऑर्डर कंसर्न। यानी यहां प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो अगेन यू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स लाइक रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब कोई व्यक्ति किसी को ऑर्डर देता है, ओके, तो what happened, she says that that is conscious attitude। इसमें you have to realize the principles on which the order is been given। यानी principle का मतलब order is given related to that order, it means the situation on which the order has been provided, और उस situation में कौन से principle को adopt किया गया है, that is more important। yes, उस situation में कौन से principle को adopt किया गया है, that is more important। And this is only the reason that you see when we talk about conscious attitude, this is what it is, the different knowledge of different principles। यानी नॉर्मली सुपीरियर क्या करते हैं, एक ही प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑर्गेनाइज वो क्या करते हैं कि उसको अप्लाई करते रहते हैं। ओके, उसी प्रिंसिपल को वो अप्लाई करते रहते हैं। तो दैट इज व्हाट शी सेड कि जब आप ऑर्डर देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिचुएशन, when you provide order according to law of situation, तो आप इस मैटर को जान जाइए, you know this, that different principles and knowledge should be applied while giving order। यानी कॉन्शियसली आपको पता है कि हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं, क्या ऑर्डर दे रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि सभी रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए अप्लाई होगा। yes, it is not important that all rules and regulation is applied for it, all the rules and regulation applied for it। So that is why number one she said about conscious attitude। Second one is says responsible attitude। It refers to the implementation of order with proper consideration of responsibility, acceptance of subordinate। देखिए इसी acceptance of subordinate को ना चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन has explained more elaborately and more detail कि जब responsible attitude का मतलब देखिए first one is related with the second one। You cannot eliminate the first one, you cannot understand the first separately and second separately। आप पहले वाले को separately और second वाले को separately आप नहीं understand कर सकते। आप ये देखिए कि जब आप responsible attitude की बात कर रहे हैं, when we are talking about responsible attitude, तो इस responsible attitude में होता क्या है, you see, जब आप consciously आपने क्या किया कि ऑर्डर दे दिया, अब जो सबॉर्डिनेट है उसकी एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हेन ही हैज टेकन योर ऑर्डर, तो अब ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नाउ ही इम्प्लीमेंटेड responsible manner। Now he implemented in a responsible manner। Okay, like you see, जब आपके घर में कोई ओकेजन आता है, आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ योर होम इटसेल्फ, कोई ओकेजन आता है तो आप देखिए आपके पेरेंट्स कॉन्शियसली क्या करते हैं कि हर लोगों को हर काम देते हैं, और जिन लोगों ने उस काम को लिया है, रेस्पॉन्सिबल लिया है, इट मस्ट बी कॉम्पैक्ट, इट मस्ट बी मींस अकॉर्डिंग टू द सबऑर्डिनेट, एक्सेप्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट। यानी हम अगर आपको कोई काम दे रहे हैं तो आप उसी वक्त कह सकते हैं कि मेरे से काम होगा कि नहीं होगा। अगर आपने कह दिया कि यस आई एम रेडी टू इम्प्लीमेंट, आई एम रेडी टू इम्प्लीमेंट दैट वर्क, नाउ इट इज योर जॉब टू गिव रिजल्ट टू दैट। Now it is your responsible, and now it is your job to give result to that work assigned to you। So the conscious, क्योंकि आपने जब उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया तो आप भी बहुत कॉन्शियस थे कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं, अकॉर्डिंग टू मेरी पार्कर फॉलेट। जबकि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में इट इज वेरी डिफिकल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि व्हेन द कमांड इज गिवन, the subordinates hardly get time to think about it and they are there to accept कि हाँ हम इसको accept कर लेते हैं। they are there to accept that yes I am accepting it, हम इसको accept कर ले रहे हैं। okay,
So this is what it says about responsible attitude. Okay, this is responsible attitude. Then, and you see, this responsible attitude is dependent on, again, ये सारी चीजें, all the theory of Mary Parker Follett based on situation. तो आप लोग को प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉरगेट दैट द सबऑर्डिनेट विल आल्सो एक्सेप्ट द ऑर्डर व्हेन इट इज कंपेयर टू, उसके अकॉर्डिंग होगा, और उस सिचुएशंस के लिए वो हैंडल करने के लिए तैयार होगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। फोर्सफुली मेरी पार्कर फॉलेट में नहीं किया जा सकता। देन एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड, it has to make experiment analysis positive and negative impact of the issuing order। अब बताइए, ये आप आज के टाइम में इज इट पॉसिबल? एम आई आस्किंग विथ यू दैट इज इट पॉसिबल कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करें किसी चीज का, कि उसका नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है? बट मेरी पार्कर फॉलेट ने कहा कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस में, इफ द ऑर्गेनाइजेशंस रियली वांट सक्सेस, उसको अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस चाहिए, तो डेफिनेटली दैट ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू एक्सेप्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दैट पॉलिसीज, प्रोग्राम और ऑर्डर। अब देखिए एग्जांपल आपको बता रहे हैं, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी वेलफेयर पॉलिसी होती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है और उसे इंप्लीमेंट किया जाता है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, दैट इज एक्सपेरिमेंटल बेसिस। उसको इंप्लीमेंट किया जाता है एज अ पायलट बेसिस, पायलट टेस्ट। अब देखिए, जब हम पायलट टेस्ट की बात करें तो नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ मनरेगा। ओके, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम कही, दैट इज नॉट वाई, इट्स नॉट श्योर। सो मनरेगा को आप ले लीजिए। अब आप मनरेगा में जब इसे इनिशियली इंप्लीमेंट किया गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस किया, और एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि पहले साउथ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसे देखा गया कि व्हाट रिजल्ट दे आर गेटिंग, और रिजल्ट उसका पॉजिटिव था, दैट इज व्हाई इट वाज इंप्लीमेंटेड इन अ फेस मैनर थ्रू आउट कंट्री, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल बेसिस। जैसे आप देखिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने क्या किया था, जब 12 5 ईयर्स प्लान की बात थी, 12, इन्होंने क्या किया था कि 12 5 ईयर्स प्लान की बात थी, 12 5 ईयर्स प्लान को व्हाट ही हैज डन, इन्होंने ओपन कर दिया था, ऑनलाइन ओपन किया था कि इफ एनीबॉडी वांट्स टू गिव सजेशंस फॉर 12 5 ईयर्स प्लान, दे आर मोस्ट वेलकम। So this was the initiative taken by Manmohan Singh, that what is the negative and positive aspects of that plan. दो 12 5 ईयर्स प्लान के बाद कोई प्लान आया नहीं, नीति आयोग आ गई उसके बाद। ओके, तो आप देखिए कि मेरी पार्कर फॉलेट ने कितनी अच्छी बातें कही है कि ऑर्गेनाइजेशंस शुड नॉट टेक एनी डिसीजंस एंड इट शुड इंप्लीमेंट that they have issued the order. The order is from the top, and since the order is from the top, we have to accept and we are implementing according to the superior what they have ordered or what they have issued order. मेरी पार्कर फॉलेट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी पार्कर फॉलेट ने ऐसा, मेरी पार्कर फॉलेट ने कहा, you see, मेरी पार्कर फॉलेट ने what she said, मेरी पार्कर फॉलेट says that no, it should not be like that. ऑर्गेनाइजेशंस के सक्सेस के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के सक्सेस नहीं होने के लिए, ओके, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और अनसक्सेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक सम एक्सपेरिमेंट।
अगर आपको लग रहा है कि इंप्लॉय पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो यस यू कैन डू विद इंप्लॉय, एंड यू विल गेट द रिजल्ट कि हाँ ये पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करके कंक्लूजन यू विल कम टू इट दैट व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इल्टन मेयो हैज डन. तो आप देखिए कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट में मेरी पार्कर फॉलेट का कहना है कि व्हेन इट इज कॉन्शियसली लेट डाउन, रेस्पॉन्सिबिलिटी जब ले ली गई है, तो एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड भी देखा जाएगा कि ऑर्डर जो इशू किया गया है, जिन्होंने लिया है, उसका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इंपैक्ट निकल रहा है. देन फाइनली ही सेज दैट आफ्टर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट एटीट्यूड. व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्ट एटीट्यूड? रिजल्ट एटीट्यूड का मतलब होता है कि अब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है, कितना सक्सेस रेट है, हम उसका रिजल्ट देखना चाहेंगे. हम उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं. और इस रिजल्ट ओरिएंटेशन में, इफ यू सी, इट रेफर्स टू गेटिंग द फीडबैक. सबसे बड़ी चीज इन्होंने कहा है फीडबैक. It refers to getting feedback on implementations of order and modify it according to the demand of the situation. देख ली, मैंने आपसे कहा ना कि मेरी पार्कर फॉलेट की सारी थिंकिंग जो है that will revolve around this situation. That will revolve around this situation. Remember this. Whatever thinking Mary Parker Follett has given, it will be revolving around this situation. Yes, it will be revolving around this situation. और आप देखिए, इट फीडबैक का मतलब क्या होता है. जैसे सपोज दैट इफ अ पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड, अब देखिए जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, तो इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में इट्स द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू गेट द फीडबैक कि जो प्रोडक्ट हमने मार्केट में सप्लाई किया है उसका क्वालिटी कैसा है, उसका रेस्पॉन्स कैसा है. जैसे यू पीपल आर नाउ स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के बाद एज आई एम गाइडिंग यू, सो यू कैन नाउ गिव द फीडबैक दैट हाउ एंड व्हाट वे आई एम टीचिंग यू. इज इट फिजिबल फॉर योर एग्जाम्स ओरिएंटेड, क्या एग्जाम्स इस क्लास को करने से हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे. ये फीडबैक जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लोग लेते हैं. Remember this. These all feedback is to be taken by the organization. These all feedback is to be taken by the organizations. और उस बेसिस पे you see he has, Mary Parker Follett has given order किस बेसिस पे इशू किया जाए, यानी issuing of order according to classical thinkers. According to classical thinkers, the classical thinkers was issuing order without any consequence. Without any consequence. Without any consequence. And you see, but according to Mary Parker Follett, the order must be compatible with the employees and manager, that is organization. Okay. So, आप देखिए कि ये कॉन्शियसनेस जो है, कंसीक्वेंस जो क्लासिकल थिंकर्स का था ये डिफरेंट था. और कंसीक्वेंस अगर आप बात करेंगे मेरी पार्कर फॉलेट का, तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सिचुएशन. और मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, तो ये सारे गिविंग ऑर्डर इज बेस्ड ऑन सिचुएशन.
और उन्होंने क्लासिकल थिंकर्स की कोई भी थ्योरी को निगलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि क्लासिकल थिंकर जो ऑर्डर देते थे वो अपने टाइम पे वो ऑर्डर सही था, बट उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। एंड सिचुएशन इज ऑल बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। दिस सिचुएशन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। सोशल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है सिचुएशंस के लिए। सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट करता है। दैट इज व्हाई शी सेड अबाउट कॉन्शियस एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबल्स एंड एक्सपेरिमेंटल एंड रिजल्ट, और फाइनली शी सेज दैट ऑल शुड बी बेस्ड ऑन सिचुएशंस। तो मैंने सबका एग्जांपल भी आपको बता दिया। इससे ज्यादा डिटेल एग्जांपल्स व्हेन यू जॉइन दी plus course there I'll be giving you. Okay, now she talks about power, क्योंकि ये जो मेरी पार्कर फॉलेट ने जो अपनी थ्योरी दी है, you see मेरी पार्कर फॉलेट हैज गिवन अ थ्योरी। तो मेरी पार्कर फॉलेट की जो थ्योरी है, ओके, मेरी पार्कर फॉलेट की जो थ्योरी है, ये सारी थ्योरी क्लासिकल थिंकर्स के साथ ही चलेंगी और उसमें ये मॉडिफाई करती रहेंगी अपनी, यस, इसमें मॉडिफाई करती रहेंगी। तो अब इन्होंने देखिए मैक्स वेबर ने कहा है कि पावर, व्हाट इज पावर, शक्ति क्या है? तो पावर इज डोमिनेटिंग, यानी जो वर्ग के पास पावर है इट विल डोमिनेट, एंड अथॉरिटी टर्न्स पावर, उन्होंने लेजिटिमेट पावर के बारे में कहा। और मैक्स वेबर ने ट्रेडिशनल क्रिस्मेटिक वहां पे भी पावर को एक्सप्लेन किया कि वहां राजा का अपना पावर है और वो पावर अपने लिए डिफाइन होता है। वो अपने लिए डिफाइन होता है। ओके, और यहां पे इन्होंने जो पावर का कैटेगराइजेशन किया है, तो क्लासिकल के साथ साथ अपनी भी विचार दिया है। इन्होंने कहा है दी देयर मे बी द एग्जिस्टेंस ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ पावर, देयर मे बी द एग्जिस्टेंस ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ पावर, और ये टू कैटेगरीज ऑफ पावर क्या है? यू सी, वन इज पावर ओवर, एंड वन इज पावर विथ। अगर आप मेरी पार्कर फॉलेट ने जितने भी क्लासिकल थिंकर्स के थ्योरी को एनालाइज, सॉरी बिहेवियरिस्ट के थिंकर्स को थ्योरी को एनालाइज करेंगे ना, somehow or the other they are talking about that only, somehow or the other they are talking about that only, घुमा फिरा के सब एक ही बात कह रहे हैं। इसीलिए एक थिंकर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आने वाले जो भी नेक्स्ट थिंकर होंगे ना, उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, मुझे जहां तक लगता है कि आने वाले जो भी थिंकर होंगे यू विल बी एक्सप्लेनिंग इट वेरी वेल। तो आप देखिए मेरी पार्कर फॉलेट हैज टॉक्ड अबाउट टू कैटेगरीज ऑफ पावर, दैट इज, और ये पावर ओवर को इन्होंने कहा कि दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय क्लासिकल थिंकर। This has been given by classical thinker. And power with is given by behavioralist. तो अब पावर ओवर क्या है? डोमिनेटिंग। पावर विथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी पावर विथ इज डिसेंट्रलाइजेशन।
And power with power over is why it is dominating, because it is centralized. Planning Commission, centralized. Niti Aayog, decentralized. नीति आयोग डिसेंट्रलाइज्ड. तो आप खुद देखिए, यू जस्ट वॉच इट, यू जस्ट सी दैट हाउ पावर विथ इज हेल्पफुल. पावर विथ का मतलब होता है कि जो पावर है वो सबके साथ मिलके काम करेगा, और कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेगा, और कोई किसी से ये नहीं पूछने जाएगा कि आप मेरा आज सुपीरियर है, आप तो आप मेरे को बताएं कि मेरा काम क्या है. नहीं, ये नहीं होगा. Subordinate according to circumstance, according to situations, automatically they will take and assumes that this is my responsibility, this is my work, and they will take it. और अगर subordinate को कुछ कहना है, they have a full right to say to the superior, and it should be coordinative manner. Coordinative manner. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यस सुपीरियर जो है वो एक बार आपको कह दिया तो आप नहीं. इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट क्लासिकल थिंग. दैट इज व्हाई शी सेड. सो नाउ कैन you tell me which is better, power with is better or power over is better? As a public administration student or faculty, if the question comes that the concept given by Mary Parker Follett of power, that is power over and power with, so which one will be suitable for contemporary situation? अब आप बताइए क्या लिखिएगा. अगर ये जवाब क्वेश्चन आ गया कि मेरी पार्कर फॉलेट ने पावर के बारे में, शक्ति के बारे में बात की है, और उन्होंने दो टाइप की शक्ति की है, पावर ओवर और पावर विद, तो आज के दौर में कौन सा यूज होगा इनका, पावर ओवर और पावर विद? थिंक अबाउट इट. आप लोग अपने दिमाग में सोचे पहले. हम 1 मिनट टाइम देते हैं आपको. अगर आपके पास, इफ यू हैव टाइम, यू जस्ट कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स. आप आंसर का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि पावर ओवर अच्छा है कि पावर विथ अच्छा है. हाँ, ये आपके, इट इज अप टू यू. इट इज अप टू यू विच वन इज बेटर, पावर ओवर और पावर विथ. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. यू हैव फुल राइट टू कमेंट. अब देखिए आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा. मैं जहां तक एनालाइज कर रहा हूं, मैक्सिमम लोगों ने जो ये लेक्चर देख रहे हैं उनका जवाब होगा सर पावर विथ इज बेटर, और पावर विथ ही बेटर है. अच्छा तो यही है. एक मिनट, थोड़ा मैं इसे इरेज कर दूं, अदरवाइज बहुत ज्यादा लिख दिया है मैंने, तो इसकी वजह से ये सब चीज थोड़ा सा दिक्कत कर रही है. प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल. दिस इज पावर. somehow पावर की दिखानी. सो मोस्ट ऑफ यू, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि पावर ओवर अच्छा है कि पावर विथ अच्छा है, isn't? आप देखिए, आप बहुतों का जवाब आया होगा और आपके मन में भी चलता सर पावर विथ इज बेटर. सो इफ यू गिव आंसर दैट पावर विथ इज बेटर, तो इसका मतलब पावर ओवर बेटर नहीं है, पावर ओवर अच्छा नहीं है. यू आर क्रिटिसाइजिंग पावर ओवर. तो अगर क्रिटिसाइज करना होता तो मेरी पार्कर फॉलेट दोनों को लिखती ही नहीं. आपका जवाब कैसा होने, हाउ यू शुड अप्रोच टू द आंसर. Not only in public administrations, your approach towards the answer should be very logical. Nothing is perfect and nothing is better in the world. Remember,
Nothing is perfect and nothing is better in the world. So according to the situation, you see, according to the situation, हालांकि कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि चूंकि दिस इज नॉट अ लाइव क्लास, चैट तो हो नहीं पा रहा है, अदरवाइज बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस अगर हम देखें तो बोथ कैन बी यूज्ड। अकॉर्डिंग टू अगर सिचुएशन देखें ना तो बोथ कैन बी यूज्ड। ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज पावर विथ विल गिव यू मोर रिजल्ट। यस, दिस इज अंडरस्टूड कि पावर विथ जो है वो रिजल्ट देगा, बट ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज देगा। तो कहीं कहीं आपको पावर ओवर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी द कंट्री गवर्न्स विथ पावर ओवर। Country will be governing with power over. Yes, country will be governing with power over. But in normal circumstance, we used power with. That means there is a sorry, there is a coordination between employer and employee. Coordinations between employer and employee. Yes. पावर विथ का मतलब तो अब देखिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयर, यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉयर को हटा दें, यू जस्ट सी, प्लीज वेट, इरेज करके अगर हम इस एम्प्लॉयर को हटा दें और एम्प्लॉय को हटा दें, तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, that there should be a coordination between central government and state government. दिस इज कॉल्ड पावर विद। और आज के दौर में आप देखिए ना, स्टेट गवर्नमेंट तो है, बट उस स्टेट गवर्नमेंट में अगर बीजेपी सेंट्रल की पॉलिटिकल पार्टी, राइट नाउ इट इज बीजेपी, अगर स्टेट में बीजेपी नहीं है तो वो भी एक चैलेंजिंग हो जा रहा है। वो भी एक चैलेंजिंग हो जा रहा है। रिमेंबर दिस, दैट इज ऑल्सो चैलेंजिंग। तो normally when the question is asked in this way na, you have to answers very logically and very diplomatically. अगर पावर ओवर खराब होता तो हम लोग उसको पढ़ते नहीं, पावर विथ अच्छा होता तो आपको याद रखना चाहिए कि जितने भी क्लासिकल थिंकर वो इसी की बात करते हैं। भाई जब क्लासिकल थिंकर, व्हेन द क्लासिकल थिंकर्स गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ओवर, दैट वाज द रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम। उस दौर के टाइम इट वाज रिक्वायर्ड, और जब उस दौर में इट वाज रिक्वायर्ड तो हाउ कैन वी से दैट दैट इज रॉन्ग? So that means both are correct, but it should be used according to situation. That is what I am mentioning. So don't give any answer according to you. You think that it is perfect, but it may not be perfect according to UPSC. हो सकता है कि वो perfect उनके according ना हो. So power over is autocratic phenomenon. देखो ना किम जॉन क्या कर रहा है, नॉर्थ कोरिया का किम जॉन, what he is doing. While power with is co-active phenomenon. Power with is co-active phenomenon. You see, power which is power which is correct attitude of managerial action, because it leads to democratizations of nations of decision making process.
It facilitates two-way learning process in which leader influence follower and follower influence the leader. So organization became the subject of circular response. Mind blowing. यू सी मेरी पार्कर फॉलेट ने जब ये पावर का कॉन्सेप्ट दे रही थी, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया दैट इज सर्कुलर रेस्पॉन्स. सर्कुलर रेस्पॉन्स का उन्होंने एक ये दिया. ओके. और ये जो सर्कुलर रेस्पॉन्स था, उनका मानना है कि सर्कुलर रेस्पॉन्स लिटरली मीन्स दैट ऐसा नहीं है कि हमेशा सुपीरियर से ही सबऑर्डिनेट सीखेगा. कभी कभी सबऑर्डिनेट भी कुछ अच्छी बातें कह दे जो सुपीरियर के दिल में लग जाए. इन्फ्लुएंस होना चाहिए. तो इसीलिए इन्होंने कहा कि पावर वैसा होना चाहिए जो करेक्टिव एटीट्यूड पे मैनेजर काम करे. और वो डेमोक्रेटाइजेशन, सो डेमोक्रेटाइज का मतलब होता है कि यस, मैनेजर एंड एम्प्लॉइज बोथ विल कम टुगेदर और सब अपने व्यूज देंगे. और एक तरह से ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गया जहां पे एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग. वेर यू सी everybody is participating. Everybody is participating. Yes. और ये डिसीजन, दैट इज व्हेन द डिसीजन मेकिंग इज टेकन इन दिस वे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक वे ऑफ टेकिंग डिसीजन. क्लासिकल थिंकर्स के टाइम में पावर केवल ऊपर वाले डिसीजन लेते थे और सबऑर्डिनेट के ऊपर थोप दिया जाता था. आज भी हमारे कंट्री में होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेती है और उसके ऊपर थोप देती है. कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं जिसके ऊपर ऐसा लिया गया. ओके. तो आप देखिए, सो दैट इज व्हाट से. और इन्होंने कहा कि अगर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस दैट इज डिसीजन मेकिंग अगर डेमोक्रेटिक हो गया, तो इट विल फैसिलिटेट टू वे लर्निंग प्रोसेस. यानी सबऑर्डिनेट भी सुपीरियर को अच्छा सजेशन दे सकता है कि हाँ देखिए, if you see a movie, I don't remember, yes, I remember that movie. In Indian movie, there was a movie called Gabbar. Gabbar is back, और Gabbar it's an Akshay Kumar movie. तो उस मूवी में आप देखिए कि he was keep on killing all the corrupt officers and politicians. He was keep on killing it. Okay. And the police department was in search that who is doing so. Isn't? And in police department, from subordinate to inspector, ACP, DCP, all were searching that what is happening, why it is being killed, because they are corrupt officers. अब देखिए, जब ये इश्यूज हो रहे थे तो देयर वाज अ कांस्टेबल आल्सो. तो वो कांस्टेबल ने क्या किया कि ही वांट्स टू गिव सजेशंस टू देम. दे वर जस्ट निग्लेक्टिंग हिम. वो लोग उसको इस तरह से निग्लेक्ट करते थे एज इफ दे फील दैट कि ये कांस्टेबल है, हमारे लिए चाय लेकर आएगा, समोसे लेकर आएगा और मेनी मोर थिंग्स. ओके. सो फाइनली उसको ऐसा लगा, फाइनली ही रियलाइज कि यार हम इनके साथ क्यों काम करें when they are always trying to suppress me and my views. तो when ACP asks कि ये how to identify, ये कैसे पता चलेगा, then he says sir I know.
all these persons who was superior to him, they reacted and said that कि how can you know? पता है कितने बड़े लेवल की बात हो रही है? ACP realized it. That is the two-way communication. ACP of that department realized and say, what is your view? And he gave a very good suggestion, sir. These all things I have notified it, and because of this, all the things are happening of this university, and these are the students which I have notified it, and according to that, we can go closer to it. ACP really accepted his demand, accepted his suggestions, and when he went to that suggestion, he finally achieved the target also. He caught the cover also. So you see from the movie also, you can think that how the two-way communication, that is two-way learning process, can lead the benefit of the organizations. यानी two-way learning process organizations को कितना benefit कर सकता है, that is very important. Okay, so that is what he talks about power. कि power जो होना चाहिए वो dominating नहीं होना चाहिए, democratic होना चाहिए, सबके साथ मिलके होना चाहिए. Where you require dominating, there you can use it, but dominating is not always successful. Dominating power is not always successful. That is why he says two-way communications. Leader will influence to subordinate, and subordinate will also influence the leader. Great. That is why she gave circular response. Now, then her eighth concept is concept of leadership. Concept of leadership. Now here we'll try to see that what type of leaders we need to have. Leader may be regarded as a person. देखिए लीडर जो है वो how what type of person is. According to Mary Parker Follett, leader is regarded as a person. क्या करता है वो? Concept of leadership. हिटलर का भी लीडर था, लेनिन का भी लीडरशिप था, माओस का भी लीडरशिप था, ओबामा का भी लीडरशिप था, ट्रंप का भी लीडरशिप था, और हमारे मोदी जी का भी लीडरशिप, और इंदिरा गांधी का भी लीडरशिप, और जवाहरलाल नेहरू का भी लीडरशिप था. So you see, how does the leader influence the other? We'll try to understand how the leader influence the other. So you see, leader may be regarded as a person, number one, who energizes his group. अपने ग्रुप को हमेशा मोटिवेट करे. अगर कोई गलती काम कर रहा है, इफ एनीबडी इज डूइंग रॉन्ग ऑल्सो, तो उस लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि वी हैव टू से पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, उसको बताएं कि ये गलत है और इस गलत को इस तरह से सही कर सकते हो, और उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा. और इसी मोटिवेशन से ही सेज दैट कि अगर वो अपने ग्रुप को मोटिवेट करेगा, द ग्रुप विल रिमेंबर द लीडर फॉरएवर. लाइक महात्मा गांधी. यू सी महात्मा गांधी, he really motivate his group. लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपने ग्रुप को मोटिवेट करो कि नहीं, अगर हमारी पहली लड़ाई हम हार चुके हैं, तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ वॉर, और दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ ऑल्सो. वी हैव टू अगेन मूव forward. And that is why you see Mahatma Gandhi started a movement, non-cooperation movement, and because of Chauri Chaura incident, that was dismantled. खुद ही विड्रॉ कर लिया उन्होंने, बट उन्होंने रुका नहीं. उन्होंने देखो फिर उन्होंने चालू किया सॉल्ट सत्याग्रह, civil disobedient movement, and with 78 followers he started, and finally he reached with masses. Dandi to Sabarmati. Okay, so you see, this is how when we say who energize his group. यानी अगर आप क्रिकेट टीम खेल रहे हो, क्रिकेट अगर देखिए ना, आप क्रिकेट अगर देख रहे हो, तो जो लीडर होगा वो सबको मोटिवेट करेगा. Yes, everybody will be motivated.
और उसके मोटिवेशन से देखिए कितनी एनर्जी मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टेक इट द एग्जाम्पल कि एक आईएएस ऑफिसर अगर एक क्लर्क को शाबाशी दे दिया ना सबके सामने, ही विल बी मोटिवेटेड टू मच, और उसको देखकर पूरा ग्रुप सोचेगा कि नाउ हम भी उसी की तरह काम करें, सो दैट विल आल्सो बी प्रेज्ड। सो दैट इज व्हाई शी सेड कि हु एनर्जाइज हिज ग्रुप, वो अपने ग्रुप को एनर्जाइज कर रहा है। हु टेक इनिशिएटिव्स, यानी पहले लीडर कहते हैं ना कि रिस्क नीड्स टू बी टेकन, रिस्क नीड्स टू बी टेकन, यानी आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और ये लीडर का काम है कि पहले रिस्क ले। Yes, this is the responsibility of the leader to take risk. Who issue order integral to situation, integral का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोस्पेक्टिव से और अपने एम्प्लॉइज के प्रोस्पेक्टिव से सिचुएशन को ध्यान में रखे वो डिसीजन ले रहा है। ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन अपने हिसाब से ले रहा है, यानी ऑर्डर ऐसा इशू करो जो सबके बेनिफिट में हो, ऑल विल बी बेनिफिटेड फॉर इट। Okay, so he says leaders should be like that. He says there are three types of leader. देखो इन्होंने लीडर्स के कैटेगरी भी बता दी। There are three types of leader. She has talked about there are three types of leader. Number one, leader of position. What do you mean by leader of position? She said such leadership is based upon formal authority, compliance in written documents, district collector, district magistrate, so on. दैट इज कॉल्ड लीडर ऑफ पोजीशंस। यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पोजीशन है, फॉर्मल अथॉरिटी है, कंप्लायंस विद रिटन डॉक्यूमेंट्स। व्हाई आई से रिटन डॉक्यूमेंट्स, व्हाई आई से रिटन डॉक्यूमेंट्स, क्यों? क्योंकि वो एग्जाम देकर एवरीथिंग ही हैज डन, ही हैज गिवन फुल एफर्ट्स टू गेट द जॉब, एंड एवरीथिंग एज उनका सारा चीज गजट ऑफ इंडिया में रिटन है। कब एग्जाम निकाले, कब उनका प्रमोशन हुआ, पेंशन मिलेगा तो कब होगा, कितना पेंशन मिले, ये सारा चीज ट्रांसफर, एवरीथिंग इज बीन मेंशन्ड देयर। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट। सो शी सेज दैट लीडर ऑफ पोजीशन जो है नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा। जो भी नॉर्म्स है वो रिटर्न उनके पास आएगा तभी वो डिसीजन लेगा। तो इट इज ओके, गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट गुड फॉर लॉन्ग रन। लीडर ऑफ पर्सनालिटी, महात्मा गांधी। पर्सनालिटी भी अच्छी। महात्मा गांधी की देखिए पोजीशन कुछ नहीं मिला था उनको, उनको पर्सनालिटी, इट इज बेस्ड अपॉन पर्सनल स्किल एंड एबिलिटी। और जब पर्सनालिटी की बात करोगे तो यस, पर्सनल स्किल और एबिलिटी आपको दिखनी चाहिए उसकी। जैसे करिस्मेटिक लीडर, उनकी पर्सनालिटी, उनके में करिश्मा होता है, कुछ ऐसा क्वालिटी होती है जो लोग उनके पीछे भागने लगते हैं। जो लोग उनके पीछे भागने लगते हैं। So it is based on personal skills and ability. Personality is always based on personal skills and ability. Like you see, when we talk about हिटलर की पर्सनालिटी अच्छी थी, और उसके जो फॉलोअर्स थे उसकी बातें सुनकर उसके पीछे फॉलो, उसके में स्किल था वैसा, एबिलिटी था वैसा।
He was having the skills and ability. Personal skills and ability. So this is the second type, and the third types of leadership which she talks about. मेरी पार्कर फॉलेट में जो थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप की उन्होंने बात की है, that leadership she talks about is always helpful in any situation. यानी अगर आप लीडरशिप ऑफ फंक्शंस, यानी लीडरशिप ऑफ फंक्शन, अकॉर्डिंग टू मेरी पार्कर फॉलेट का कहना था कि लीडरशिप ऑफ फंक्शन इंक्लूड पोजीशन, पर्सनालिटी, पोजीशन एंड पर्सनालिटी. यानी ये दोनों चीज इनके में, यानी वो जो लीडर होगा, it depends upon situation and variables. So situation analysis is the basis of functional leadership. And she regarded that functional leadership is the best form of leadership. Functional leadership is the best form of leadership. Okay, that means इनका कहना है कि ये जो फंक्शनल लीडरशिप है, जो फंक्शंस के अकॉर्डिंग काम करेगा. You see, when we say about this functional leaderships, तो functional leadership का सबसे पहला काम है, first and foremost functions of the leadership, that they will take decisions not on personality, not on positions, but according to situation. तो सिचुएशन में कभी कभी पोजीशंस आगे आएगा, कभी कभी पर्सनालिटी आगे आएगा. ओके, और दिस इज ओनली द रीजन दैट मेरी पार्कर फॉलेट थ्योरी इज यस एडवांस ऑफ हर टाइम. आज भी आप देखिए, अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट लीडरशिप, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर यूज टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एक्सेप्ट फ्यू सरकमस्टेंस को छोड़कर लीडर जो है, वो जो डिसीजन लेता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस लेता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस लेता है. और इसीलिए आगे चल के इफ यू गो अहेड, जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो यू सी दैट लीडरशिप की देयर आर टॉपिक्स ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप की टॉपिक है, और उस लीडरशिप के टॉपिक में यू नो व्हाट दे हैव आस्क्ड. लीडरशिप के टॉपिक में इट हैज बीन आस्क्ड एंड इट हैज बीन सेड दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स आर देयर. उस हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, लीडरशिप हमारा एक चैप्टर है. उस लीडरशिप के चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट इट कि हाँ, लीडरशिप जो है वो कितने टाइप का है, और कौन सा लीडर अच्छा है. थ्योरी ऑफ लीडरशिप है, लाइक ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, कंटेम्पररी थ्योरी. तो मेरी पार्कर फॉलेट, यू सी शी हैज टॉक्ड अबाउट सिचुएशनल थ्योरी. This is what she has talked about leaderships of functions. So this is what I have explained about Mary Parker Follett. Next I'll be explaining on live classes when I'll be joining with you.
on live classes, we'll be concluding the theory of Mary Parker Follett completely and will proceed further. So if you have any doubt, you have full right to ask with me when I'll conclude it. Okay. Till then, I hope that you all have understood. Till then, bye. Take care.